Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाइयों और बहनों। So I'm going to share a message, and the title is exercising ourselves towards godliness. और आज का जो हमारा बांटने का जो विषय है वह यह है कि अपने आप को हम अभ्यास में लाना ईश्वरीय स्वभाव में बनने के लिए। The Bible speaks about a thing called sound doctrine, और बाइबल जो है वह खरे उपदेश के विषय में बात करता है। and it says that the sound doctrine is the doctrine conforming to godliness. और वचन ऐसे कहता है कि ये जो खरा उपदेश है वह ईश्वरीय स्वभाव के अनुरूप है। Basically, doctrine means a teaching. और जो उपदेश है उसका मतलब है कि सिद्धांत। So, what is the meaning of a sound doctrine? तो खरे उपदेश का मतलब क्या होता है? It means it is a healthy doctrine. इसका मतलब है कि वह एक स्वस्थ सिद्धांत है। That means when we hear and practice this teaching, we will be spiritually healthy. इसका मतलब है कि जब हम इस शिक्षा को सुनेंगे और इसका अनुसरण करेंगे, हम आत्मिक रीति से स्वस्थ होंगे। And it's what is godliness? और ईश्वरीय स्वभाव क्या है? Because sound doctrine is a doctrine of godliness. और जो खरा उपदेश है वह ईश्वरीय भक्ति के अनुरूप है। So godliness, when I saw it in the dictionary, it's or in the net, it is the quality or practice of conforming to the laws and wishes of God. और जब मैंने इस ईश्वरीय भक्ति के विषय में जब मैंने शब्दकोश में और इंटरनेट पर मैंने खोजा कि इसका वास्तव में मतलब क्या होता है, तब मैंने पाया कि यह वह गुण है और यह वह व्यवस्था और नियम होते हैं जो परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप होते हैं। Yeah, it is a practice of conforming to the laws and wishes of God. कि यह वह अभ्यास और वह काम होता है जिसे हम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। Now in the Bible, godliness and religion are different. लेकिन बाइबल में ईश्वरीय भक्ति और जो धर्म है वह अलग है। Yeah. So religion is one thing and godliness is another thing. कि जो धर्म है वह एक अलग बात है और जो भक्ति ईश्वरीय भक्ति है वह अलग बात है। Religion consists of doing certain acts, like we can read the Bible, we can pray, we can go to church, all so many actions. But godliness is a practice of a moment by moment practice. हम यहाँ पर अंतर देख सकते हैं कि जो धर्म के अनुसार हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा बाइबल पढ़ना हर रोज, हमारा प्रार्थना करना, यह धर्म के अधीन रहकर किए गए काम है। लेकिन जो ईश्वरीय भक्ति के अधीन में हम जो काम करते हैं वो एक एक क्षण के बाद क्षण वह काम होता है। So, okay, we'll just look at 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 8. और हम पहला तिमोथी अध्याय 4 उसके 6 से 8 तक वचन में देखते हैं। Here we'll just read about some where it is mentioned about godliness in the scriptures. और हम वचन में कुछ बातों की ओर देखेंगे जहाँ पर ईश्वरीय भक्ति के विषय में वचन कहता है। So 1 Timothy 4 6 to 8 says, in pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of faith and of sound doctrine which you have been following, but have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily discipline is of only little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. और हम पहला तिमोथी अध्याय 4 उसका 6 से 8 देखते हैं। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की इसी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। So here, brothers and sisters, the apostle says that bodily discipline, we all know, in these days people go to the gym and otherwise at home also people exercise. It says it is of
it's only of little profit. It is, Bible is not saying that there is no profit. There is little profit in that. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रेरित हमसे कह रहे हैं, यहाँ पर देह की साधना से जो लाभ होता है उसके विषय में कहा गया है। और आज के हम इस समय में देखते हैं हमारे आसपास के लोग जिम जाकर कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, और कई लोग अब घर पर भी रोज इसका पालन करते हैं। वचन ऐसा नहीं कहता कि इससे आपको लाभ नहीं होगा, वचन कहता है इससे आपको थोड़ा सा लाभ होगा। But here about godliness is another exercise. It says it is profitable for all things. It holds promise for this life and for the life to come. लेकिन वचन यहाँ पर भक्ति के लाभ के विषय में बात करता है कि जो भक्ति है, ईश्वरीय भक्ति, वह सब बातों के लिए लाभदायक है। न केवल हमारा यह जीवन जिसे हम अभी जी रहे इसमें हमारे लाभदायक होगा, पर आने वाले जीवन के लिए भी हमारे लिए लाभदायक है। So, brothers and sisters, what we find that the sound doctrine or the teaching about godliness is not being spoken in many places today. तो भाई और बहनों, हम इससे क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि जो यह खरा उपदेश है या जो यह ईश्वरीय भक्ति के विषय में जो शिक्षा के वचन है, आज के समय में हम इसके विषय में ज्यादा चर्चा और ज्यादा संदेश नहीं पाते हैं। Today we find people speaking about very different topics other than godliness. और आज हम देखते हैं कि लोग जो भक्ति है उस विषय को छोड़कर, जो मुख्य बात है उसे छोड़कर कई अन्य विषयों पर प्रचार करते हैं। We hear people preaching about healing. We hear people preaching about money, about a lot of preaching about giving money and about prosperity. और हम देखते हैं कि लोग आजकल चंगाई के विषय में बहुत अधिक बात करते हैं, और पैसों के विषय में कि किस रीति से हमें देना, उस विषय पर ज्यादा जोर देकर आज बात करते हैं। About the earthly blessings that is being preached about. और संसार की कई सारी भौतिक आशीषें हैं जो वस्तुओं को लेकर उसके विषय में प्रचार करते हैं। About prophecies, about what will happen to you in the future, and all those things goes on. और आपके आने वाले जीवन की, भविष्य की बातों को बताते हैं, भविष्यवाणी की जो वचन होते हैं उस पर वे प्रचार करते हैं, और ऐसे कई सारी बातें करते हैं। But the message, the sound doctrine is rarely heard, we can say. लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो खरा उपदेश है उसे हम बहुत कम ही बार सुन पाते हैं। Now in 1 Timothy 6, chapter 6, verse 3 to 6. और अब पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 3 से 6 तक हम देखते हैं। The apostle says, if anyone advocates a different doctrine that does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing, but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive and evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. But godliness actually is a means of gain when accompanied with contentment. पहला तीमुथियुस अध्याय 6 3 से 6, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So, brothers and sisters, we see the importance what the Apostle Paul says, and the Word of God says that the doctrine conforming to godliness, that means a life which is becoming more like Christ, is the most important thing in the Word of God. और यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस के द्वारा वचन में देखते हैं कि वह किस बात को महत्वपूर्ण जानते हैं और जरूरी समझते हैं, और वो कहते हैं कि वह शिक्षा, वह सिद्धांत, जो खरा उपदेश भक्ति के विषय में है, मतलब कि हमारा जो जीवन यीशु मसीह के स्वभाव में बनना है, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। But the thing is that whether we have a desire and appetite for this sound doctrine, that is the question.
लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे दिल में इस जीवन को पाने की इच्छा है, कि क्या हम ऐसा जीना चाहते हैं, या हमारी वह पाचन की क्षमता है कि हम इस बात को ग्रहण कर पाए। Because unless we have an appetite, and we can read First Corinthians chapter 3, verse 1 to 3, which the Apostle Paul says about the Corinthians, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of the flesh, as to babes in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you are not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? And are you not walking like mere men? और मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1 से 3 में पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। Brothers and sisters, carefully listen to what I'm going to share. भाइयों बहनों, अब जिसे मैं आपसे बांटना चाह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने। Because if we are like a babe, and the quality of a babe, as it says, is there is jealousy and strife in us. और जैसे कि हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर यदि बालकों सा गुण है, बालकों का गुण यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि उनके अंदर डाह और झगड़ा होता है। That means we have some enmity with some people. इसका मतलब है कि हमारे आसपास के कुछ लोगों के विषय में प्रति हमारे मन में कुछ कड़वाहट है, Because either due to jealousy or because they have not treated us very well. और इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने हमसे शायद अच्छे रीति से बर्ताव नहीं किया है, या उन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। They may not have smiled at us. They may not have spoken very kindly to us. They must have ignored us. या हो सकता है उन्होंने हमें अनदेखा किया है, या उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराया ना हो। And then we have a different attitude towards them. Then we are like a babe. और तब हमारा जो स्वभाव उन लोगों के प्रति होता है जो बदला हुआ सा रहता है, यह इस बात को दर्शाता है कि हम एक बालक हैं। So then we will not have an appetite for godliness. तब हमारे पास वह पाचन की क्षमता नहीं कि हम भक्ति और भक्तिमय बातों को ले सकें। Brothers and sisters, the Bible says that we have to grow up to maturity. अब भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बाइबल हमसे कहता है कि हम सयाने होकर बढ़ना है। See, God has called us to be, when we accept Christ, we are believers. और भाई बहनों, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम विश्वासी बन जाते हैं। But then we have to become disciples. लेकिन उसके आगे के चरण में हमें शिष्य बनना है। Apostle Paul says that we are God's fellow workers, but you are God's field, God's building. अब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम जो है वह परमेश्वर के सहकर्मी हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के कार्य का वह इमारत हो। All of us are called to be God's fellow workers. और भाई और बहनों, हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। It's not that because only elders and some people who are doing our fellow workers. Even a housewife can be God's fellow worker. और यह ऐसा नहीं कि केवल कलीसिया के जो प्राचीन या जो अगुवे होते हैं वे ही केवल परमेश्वर के सहकर्मी बन सकते हैं। यहाँ तक कि घर संभालने वाली जो बहनें हैं, वो भी, जो स्त्रियां होती है, वो भी परमेश्वर के सहकर्मी बन सकते हैं। Even a youth can be of God's fellow worker. यहाँ तक कि एक जवान व्यक्ति भी परमेश्वर का सहकर्मी बन सकता है। When we have a concern for even one person, we have become God's fellow worker. यदि हमारे मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में बोझ है, तो हम परमेश्वर के साथ में सहकर्मी बन जाते हैं। When we have a burden to pray for different people, we are God's fellow workers. यदि हमारे दिल में किसी और लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ है, तो हम परमेश्वर के सहकर्मी बनते हैं। But when we are concerned only about ourselves, then we are God's field. लेकिन अगर हम स्वयं के विषय में ही केवल चिंता करते हैं और ध्यान करते हैं, तो हम परमेश्वर के सहकर्मी नहीं, परंतु केवल एक इमारत है। 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2 says, therefore,
putting aside all malice and all guile and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babes, long for the pure milk of the word, by it you may grow in respect to salvation. और हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन देखते हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बालकों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। So, do we long to read the word and do we long to grow? That is by the word of God is a by reading and obeying the word of God is a great means to grow in the Lord. अब प्रभु में क्या आप इस लालसा के साथ में बढ़ना चाहते हैं और क्या परमेश्वर के वचन को बढ़ने की लालसा के साथ में आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि जैसे वचन कहता है वचन को पढ़ना और वचन की बातों का पालन करना। Now we'll come to the today's basic topic. We'll come to that passage. और आज का जो हमारा मुख्य विषय है उस वचन के उस भाग की ओर हम आते हैं। The meaning of how to exercise ourselves in godliness. We'll come to that. और इसका मतलब कि हम अपने आप को कैसे काम में लाए, अभ्यास में लाए कि हम भक्ति का उपयोग कर सकें। It says exercising ourselves unto godliness. इसका मतलब है कि हम अपने आप को काम में लाना, अभ्यास करना कि भक्ति में हम चले जाएं। Another translation says disciplining ourselves towards godliness. और एक दूसरा अनुवाद ऐसे कहता है कि हम खुद को ऐसे अनुशासित करना कि हम भक्ति में बढ़ते जाएं। Or another translation says train up towards godliness. और एक और अनुवाद ऐसे कहता है कि खुद को हम अभ्यास में लाना कि हम भक्ति में बढ़ जाएं। Okay, so now Hebrews chapter 5 verses 11 to 14 is a very important passage. इब्रानियों अध्याय 5 उसका 11 से 14 का जो वचन का भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because we all love Christ, but this is the place where we have that is the direction that God wants us to take. और हम सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यहाँ पर यह वचन का वह भाग है जो हमसे कहता है हमें किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. इब्रानियों अध्याय 5 वचन 11 से 14। Concerning him we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is a babe. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. इब्रानियों अध्याय 5 वचन 11 से 14। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। Yeah. So, as I said before, everybody will not have an appetite, and we can have a attitude of being dull of hearing. Means, okay, I'm not so interested in this. You know, it doesn't excite us. The message of the sound doctrine does not excite us. Then we are dull of hearing. और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह हर किसी के लिए नहीं है जिनके पास पाचन की क्षमता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि यदि हमारा स्वभाव रवैया ऐसा है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे नहीं लगता यह सही है, और इसका मतलब है कि हम ऊंचा सुनने लगे हैं। That is because we become dull of hearing because our heart has become hardened. और क्योंकि हम ऊंचा सुनने लगे हैं इसलिए हमारा जो मन है, हृदय है, वह कठोर हो गया है। So when our heart is hardened, the cause of it is some sin, and we don't have an appetite, or we are not we are not interested in hearing much more about this.
और जब हमारा मन कठोर हो जाता है, जिसका परिणाम अंत में हम किसी न किसी पाप में गिरेंगे, और यह इसलिए कि हम नहीं चाहते इसके विषय में और ज्यादा सुनने के लिए। But we may be interested in hearing the elementary principles of God. That is, it says about repentance. When repentance comes, okay, that message is that reaches us. When about faith in God comes, that message reaches us. But things about becoming like Christ is not we don't have an appetite for that. लेकिन यहाँ पर जैसे कहता है कि आदि शिक्षा सुनने के लिए हम चाहेंगे, जैसे कि आदि शिक्षा का मतलब है कि परमेश्वर की ओर आकर मन फिराने का जो संदेश होता है, वह सुनने के लिए वह चाह रखते हैं, या परमेश्वर के ऊपर विश्वास में बढ़ना, उन बातों को लेकर उनमें दिलचस्पी होगी। लेकिन जब बात आएगी कि यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाना, उस विषय में वो आगे सुनना नहीं चाहते। Then it says in the last 14th verse, but solid food, okay, is for the mature. लेकिन वहां पर 14वां वचन देखते हैं कि पर अन्न सयानों के लिए है। Why? Because of practice. Now listen to this very carefully. Because of practice have their senses trained to discern good and evil. और यहाँ पर आप ध्यान से सुने कि क्यों अन्न सयानों के लिए, कि अभ्यास करते करते उनकी ज्ञानेंद्रिया भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। So here it is not just a knowledge in the mind of good and evil. और यहाँ पर केवल भले बुरे का ज्ञान जो कि हमारे दिमाग में होता है, वही केवल नहीं है। See, as we have become Christians, we have more knowledge of what is good and evil. और जैसे कि हम मसीही बन गए हैं, तो हमारे पास भले बुरे का और ज्यादा ज्ञान आ गया है। To take somebody else's thing, we know that is wrong. To tell a lie is wrong, and to do so many things, we know what is right and wrong. कि जैसे हम किसी और की वस्तु को ले लेते हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है करना, या हम झूठ कहते हैं तो हमें पता है कि ये गलत है बोलना, और ऐसे हम कई सारी बातों के विषय में जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। That is the knowledge of good and evil. यह भले बुरे का ज्ञान है। But here it says, having our senses trained to discern good and evil. I mean, even what is there, to discern means to really see whether this is good or which is of God or which is not of God. लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि अभ्यास करते करते जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है, वह भले बुरे का ज्ञान पहचान लेते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर वह बात है, लेकिन हमारी इंद्रिया पहचान लेते, अभ्यास करते रहते कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। Here it is not speaking about knowledge, but it's speaking about discerning good and evil. और यहाँ पर भले बुरे के ज्ञान के विषय में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर भले बुरे को भेद पहचानने की बात हो रही है। This is speaking about godliness. और यही भक्ति के विषय में बात करता है। Yeah. In other words, in simple words, it is this what Jesus Christ would do? और यदि हम साधारण आसान शब्दों में कहें, इसका मतलब है कि इस परिस्थिति में यीशु मसीह क्या करते? Is my reaction to this person Christ-like? कि मैंने इस व्यक्ति के विषय में मैंने जो बर्ताव दिखाया, बर्ताव किया है, क्या यह यीशु के स्वभाव के अनुसार है? Oh, I have been treated unjustly, but is my reaction Christ-like? कि मेरे साथ अन्याय जरूर हुआ है, लेकिन मेरा जो प्रत्युत्तर होगा, क्या वह मसीह के स्वभाव के अनुसार है? So this is the practice of our senses, to discern what is good and evil. और यही सारे जो बात है, परिस्थितियां हमारे ज्ञानेंद्रियों के लिए अभ्यास करने के लिए काम आते हैं कि हम भले बुरे में भेद पहचान सकें। Some few examples from my life I just want to tell of recently. और मेरे जीवन से मैं हाल ही की कुछ बातों को लेकर उदाहरण देना चाहता हूँ। I recently heard one brother was going to speak in another place. मैंने सुना कि एक भाई जो है वो किसी और स्थान में जाकर वचन बांटने वाले थे। So I had an impression that he is a little legalistic person. मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति ऐसा उसका चित्र था कि वह विधि विधान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। Then I said, what will he speak? तो मैंने उस व्यक्ति के विषय में ऐसे सोचा कि वो क्या बात करेगा। That is because of some certain in one occasion I heard some particular statement of his.
और एक ऐसे स्थान पर मैंने उसको बात करते हुए सुना और उसके आधार पर मैंने ऐसे सोचा। But he's a very good brother. लेकिन वो बहुत अच्छा भाई है। So when I'm keeping that thought in my mind, और it's one negative thought about a child of God. मैं परमेश्वर के एक बच्चे के विषय में मेरे मन में मेरे सोच विचार में एक बुरा विचार सोच रहा हूँ। Whether it's correct or not, I don't know, but I have this impression about it. लेकिन मैं नहीं जानता कि यह सही है या नहीं, लेकिन मेरे मन में उस भाई का ऐसा चित्र है। Then I realized that I have got no business to keep that thought in my life. और तब मैंने यह एहसास किया कि मेरे जीवन में उस भाई का ऐसा चित्र रखने का मुझे कोई उपयोग नहीं। So I said, Lord, I'm sorry, it's my fault. I'm totally wrong. So that thought of that brother got released. और मैंने परमेश्वर के सामने आकर कहा कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हुई है, मुझे उस भाई के बारे में नहीं सोचना था, और तुरंत वह बुरा विचार मेरे मन से चला गया। Yeah. Now another one is that now I've started working, and when I go to the company, I found some of my colleagues. Most of them are very happy to see me, but I saw one or two not even smiling. और एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जैसे अब मैं काम के लिए जाता हूँ और जिस ऑफिस में दफ्तर में मैं काम करता हूँ, वहां पर कुछ लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए कि मैं काम पर आ गया, लेकिन एक दो चेहरे ऐसे थे जो मुझे देखकर मुस्कुराए भी नहीं। Yeah. So maybe for some reason, I think I felt the reason is because I was distributing some Bible when I was retiring. Maybe they did not like it. और उसके पीछे कुछ कारण है, और जहां तक मुझे समझ आता है इसलिए कि जब मैं वहां से अपने दफ्तर से मैं रिटायरमेंट ले रहा था, तब मैंने जाने से पहले उन लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वह बांटा था, तो शायद इसलिए वो मुझसे नाराज हैं। So my attitude is now like, okay, they are. I'll just ignore them or something like that. But then in my mind, I said, how would Jesus respond? So I should not respond the same way that they respond. अब मैंने अपने मन में कहा कि हाँ ठीक है, वो मुझे देखकर खुश नहीं या मुस्कुराते नहीं तो मैं उन्हें अनदेखा कर दूंगा, लेकिन मैं अपने मन में यह विचार कर रहा था कि यदि मेरे स्थान पर यीशु मसीह होते तो वो इन लोगों के प्रति कैसे बर्ताव करते। So these are the ways of exercising ourselves unto godliness, because every thought, every word that we speak, we want to see, we want to become more like Christ. और यह सारी वह बातें और वह हमारे जीवन की परिस्थितियां है जहां पर हम भक्तिमय बनने के लिए अपने इंद्रियों का अभ्यास करते हैं। So this was the change in my thinking when I about these colleagues of mine. और यह मेरे मन में वह मेरे विचारों में वह बदलावट आया कि मेरे साथ के जो सहकर्मी जो मेरे साथ काम करते हैं उनके विषय में मैं कैसे मेरा स्वभाव हो। I recently found both of them smiling again. और मैंने हाल ही में पाया कि वो दोनों जो नाराज थे वो अब मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। So what I want to say is that our senses, it's a constant moment by moment. It's different from religion. It is our Christian life is a fellowship with God, a moment by moment fellowship with God. Our godliness is a practice moment by moment. और हम जैसे पाते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो अभ्यास करती है भक्ति में बनते जाने के लिए, कि जैसे हमारे मसीह जीवन है, हम हर समय हमारे स्वभाव में मसीह यीशु के समान बनने के लिए एक एक क्षण के बाद क्षण हम मसीह के स्वभाव में बनने के लिए जाते हैं। What we think about people matters in godliness. कि यदि आप भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के विषय में, औरों के विषय में क्या सोचते हैं यह मायने रखता है। Okay, so the Bible says taking every thought captive to the obedience of Christ. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक उस बुरे विचार को हम बांध कर मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। And we'll read Romans 8:6. हम रोमियो 8:6 पढ़ेंगे। The mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace. कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Yeah. So this is the life that God wants us to experience, not only basically on a moment by moment basis.
और ये वह जीवन है, परमेश्वर हमारे विषय में चाहते कि हम इस जीवन का अनुभव करें और ऐसा जीवन जिए, और यह क्षण भर क्षण करके, एक एक क्षण के बाद क्षण हम इस जीवन का अनुभव ले। The Lord wants us to have this mind set on the Spirit, which brings life and peace in our life. अब परमेश्वर चाहते कि हमारा जो मन है वह आत्मा पर लगा रहे, कि जिसके द्वारा हमारे अंदर जीवन और शांति है। So may God help us to, we are hearing the word of God says that in Romans 8:29 that we are called to be conformed to the image of Christ. तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं कि परमेश्वर का वचन जैसे रोमियो 8:29 कहता है कि हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह के स्वरूप में हो जाएं। So that is our calling. और यही हमारी बुलाहट है। And so let us learn to, exercise our senses to do every thought. It can be a thought against somebody, but is it a thought which is pleasing to God, or is it like Jesus would think? Is it the way that we speak or the way we act towards people? So this is an exercise in daily life, and the Bible says godliness with contentment is a great gain. और आइए हम भाई और बहनों, हम इस बात को सीखें और अपने हर रोज के जीवन में हम इसे अभ्यास में लाए कि जो कुछ हम करते या हम सोचते हैं वह परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, या हम भाइयों और बहनों के प्रति, लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, कि हमारा यह जो स्वभाव है वह भक्ति में बनता जाए, भक्ति में हम बढ़े, और संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So when we learn to be godly, then we also learn to be content, and Bible says it's a great gain in our life. और बाइबल कहते हैं कि यदि हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में यदि संतुष्टि है तो संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So I want to encourage all of us, brothers and sisters, to move from that being a person who does not have an appetite for the message of godliness to exercise ourselves unto godliness, to become, go towards maturity. तो भैया बनो, आए हम आगे की ओर बढ़ते जाए, उस अगले चरण की ओर, कि हम जो हमारे पास पाचन की क्षमता नहीं है, हमारी उतनी क्षमता नहीं इन बातों को सहने की, उससे आगे की ओर बढ़कर हम भक्ति में बातों को ग्रहण करने पाए और हम भक्ति में बढ़े। So that we will be able to touch different lives. ताकि हम औरों के जीवन को भी छू सकें। We're not just concerned about ourselves, but God will be able to give us burdens for others, and that is the true Christian life. कि न केवल हम अपने आप के विषय में सोचे और चिंता करें, परंतु परमेश्वर हमारे मन में औरों के विषय में भी हमें बोझ दें। May God help us, and may God help us to be really encouraged to really walk in this way of godliness. कि परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि इस भक्ति के इस मार्ग में हमें बढ़ने में वह कार्य करे। I pray that for myself and for each one of us. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए और आप सभी के लिए भी। Amen. Amen. Thank you, Brother Matthew, for sharing a very important message. So I think what you shared is not like a milk, but it's something like a solid food that you shared today. So I was encouraged to hear this passage, and I was just thinking about this word senses. So now we all have senses, right? So we have, how many senses do we have? और हम सभी के पास ज्ञानेंद्रियां है, और क्या आप जानते हैं कि हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? So we have 5 senses, right? So eyes, ears, nose, tongue, and skin. These are the 5 senses of a human body. और हमारे इस मानव शरीर के अंदर 5 इंद्रियां वो है कि हमारी आंखें, हमारा कान, हमारा नाक, हमारी जुबान और हमारा शरीर, हमारी त्वचा। So they are called senses because they control the functioning of body, and they are quite important parts of human body. और क्यों इन्हें इंद्रिया कहा जाता है और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा पूरे शरीर का जो चाल चलन और क्रिया काम होता है वह इन्हीं अंगों के ऊपर निर्भर होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है।
They're also important spiritually. I mean, I don't know about nose, but at least eyes, ears, and tongue can have a significant influence on our spiritual life. और ये इन सारे अंगों का हमारे आत्मिक जीवन से भी संबंध रखता है और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं नाक के विषय में तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हमारी जो आंखें, हमारा कान, हमारी जुबान जो होती है वह हमारे आत्मिक जीवन से भी संबंध रखती है। So many times our own senses can deceive us. Sometimes we are tempted based on what we hear from someone or somewhere. और कई बार हमारे जो ये इंद्रियां होती है यह भी हमें धोखा दे सकती है और हमें भरमा सकती है कि कहीं पर हम किसी के बारे में कोई बात को हम सुनते हैं। Similarly, eyes. The Bible says, "Eye is the lamp of body." और जैसा बाइबल कहते हैं कि जो आंख है वह हमारे शरीर का दिया है। So it's up to us whether we want to use these senses to be controlled by them, or we can control them to grow spiritually. तो हम या तो ऐसे कर सकते कि इन इंद्रियों के हवाले अपने आप को कर सकते कि ये इंद्रियां हम पर काम करे और हम पे हावी हो जाए, या हम इन्हें अपने नियंत्रण में रखें भक्ति में बढ़ने के लिए। So we have little or no control on our thoughts, but our senses can influence our thoughts. और हमारे मन में जो विचार चलते हैं, दिमाग में सोच विचार, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन हमारी इन इंद्रियों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे सोच विचार पर असर पड़ता है। So I think we can take a decision like what we want to speak, what we don't want to speak. Similarly, what we want to see, what we don't want to see. Similarly, ears also, what we want to hear. Because तो हम ऐसा कर सकते हैं हमारे इंद्रियों के साथ में कि मेरी आंख जो है वो क्या, मैं उसको वही दिखाऊं जो उससे देखना चाहिए, ना कि मेरी आंख देखने के लिए जो तरसती है, लालसा करती है, मैं उसको देखने दूं। वैसे हमारे कानों के साथ में कि उसे वही बातें सुननी चाहिए जो उसके लिए जरूरी है, ना कि वो बातें जो मेरा कान सुनना चाहता है। yeah, brothers and sisters. So let's exercise this. Let's exercise training of our senses to grow spiritually. तो आइए भाई और बहनों, हमारे इन इंद्रियों का हम अभ्यास करें, इसे काम में लाएं कि हम भक्ति में और ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाएं। And so, as we have heard from Brother Matthew, it's not the knowledge of knowing good and evil is important, but exercising that in our practical day-to-day life is important. और यही हमने भाई मैथ्यू से सुना कि न केवल हमारे पास भले बुरे का ज्ञान हो, परंतु हम हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों का अभ्यास करते रहें और इसमें भेद करें। Yes, brother. I'd like to refer to Proverbs 4, verse 20 to 20, 21, 22. It says here, "My son, be attentive to my words, incline your ears to my saying. Let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh." So that reminds me, Brother Karunakar spoke about your eyes and your ears and your mouth. So basically, this proverb very clearly states the same thing, that we have to be very attentive to our words. What comes out of our mouth is very, very important. And what we hear and what we see also is very important. Brother, people will translate. और मैं बहुत उत्साहित हुआ जो भाई ने वचन बांटा, और मैं नीति वचन अध्याय 4 के वचन 20 से आगे की ओर मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और यही भाई करुणाकर जब हमें बता रहे थे कि कैसे हमारी जो इंद्रिया, जैसे हमारा आंख, हमारी जुबान, हमारे कान को हम अभ्यास में लाएं। Also, there is one general saying that says, you have 2 eyes, 2 ears, and 1 mouth. So you have to hear twice see twice the amount, hear twice the amount, and speak only once the amount. और ऐसे साधारण रूप से यह भी कहा जाता है कि हमें 2 आंखें दी गई है, हमारे पास 2 कान दिए गए हैं, लेकिन जुबान एक ही दी गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि हम देखते हैं तब हम ध्यान से देख नहीं पाए, दोबारा देखें,
दो कान है इसलिए हम ध्यान से दोबारा अच्छी तरह से सुनने पाए, और जब हमें जुबान एक दी है मतलब हम एक ही बार बोलें। That is all I have to say, brother. Thank you. और यही मैं आप सभी से बांटना चाहता था। धन्यवाद। We heard about the doctrines and the kind of doctrines. हमने सिद्धांतों के और अलग अलग जो सिद्धांत होते हैं उसके विषय में हमने सुना। And means how are we supposed to be our life same as Christ? It's the right doctrine. और हमारा जीवन मसीह यीशु का जो जीवन था बिल्कुल वैसा ही हो, यही वह सही सिद्धांत है। And how can we be right in Christ? और To हम be मसीह at में Christ. और हम मसीह में सही कैसे हो सकते हैं? We need to know that, but the tree is known by its fruits. और हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि जो एक पेड़ जो है वह अपने फल ही से पहचाना जाता है। So if we are the tree of Christ, so the fruits of Christ, the others will see us according to our fruits. That's how it is in Christ. तो इसका मतलब है कि यदि हम मसीह में लगे हुए हैं, एक पेड़ में जैसे फल लगता है उसके समान, तो जो फल मसीह यीशु में लगे हैं, दुनिया भी और हमारा आस पड़ोस के बाहर का जो लोग हैं वो भी हमारे जीवन को, हमारे फलों को देखकर पहचानेंगे। So if we want to be as Christ, we must have the fruit of Christ also. तो यदि आप मसीह के समान बनना चाहते हैं तो जो फल मसीह यीशु में है वो हम में भी होना है। We all speak about the fruit, the 9 fruits, right? और हम उन सारे 9 फलों के विषय में बात करते हैं। So these same 9 fruits, the same spirit of fruit, is in us. It means we are the tree of Christ, and these fruits will bear witness that we are as Christ. और यदि हम मसीह यीशु में हैं और हम उनके पेड़ हैं, तो उनके ये जो फल हैं वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में लगेंगे। As it says about the first fruit, which is love, John 3:16 says, God loved the world that He gave His only begotten Son. और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 फल में सबसे पहला फल जो है वह प्रेम है, और हम यूहन्ना के 3:16 में पढ़ते कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। Peace is the second fruit. It says in John 4:27, my peace I give you, not the peace of the world. और यही हम वचन में पढ़ते, दूसरा जो फल है वह है शांति, और यूहन्ना 4:27 में वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, ऐसे नहीं जैसे संसार तुम्हें देता है। I will just read the chapters and scriptures because there may be not much time. Then it speaks about joy. Joy, if you know, it is written in Romans 14:17 and Acts 13:52. और मैं समय की कमी है तो मैं केवल वचन ही से बात करूंगा। जैसे हम तीसरा फल देखते हैं वह है आनंद, और हम which was brother in Acts 13:52. और हम प्रेरितों के काम उसके 13 के 52 वचन में देखते हैं। You want to know about patience? Then you must read Romans 15 verse 5. और यदि आप धीरज के विषय में जानना चाहते हैं तो आप पढ़े रोमियो अध्याय 15 का 5वां वचन। And kindness, Ephesians 4 chapter 4 verse 32. और यदि आप कृपा के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इफिसियों अध्याय 4 का 32वां वचन देखें। And goodness in Psalm 23 chapter 23 verse 6. और यदि आप भलाई के विषय में जानना चाहते हैं तो आप भजन संहिता 23 का उसका 6वां वचन देखें। And the last fruit is known as faithfulness. There are a lot of scriptures, but I want to ask is how we are faithful towards God now regarding all these fruits. और यहाँ पर अगला जो फल आता है वो विश्वास के बारे में आता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के सामने कितने विश्वास योग्य रहते हैं। Because John says the axe is under the root now also. The chapter according to John, it says the axe is now also under the root of the tree. The tree doesn't bear good fruits. It will be cut off and thrown into the fire. क्योंकि यूहन्ना ने ऐसे वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने कहा कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है और हर एक वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। So it is the fruit that's known. The tree is known only by its fruit. If we should be known as Christ and Christ in us, then the fruit that will bear witness that we are in Christ. Amen.
तो ये जैसे कि जो पेड़ है वो अपने फल ही से पहचाना जाता है, तो यदि हम मसीह यीशु में है तो उनके फल हमारे अंदर लगेंगे और ये फल हमारी गवाही देंगे कि हम मसीह यीशु में हैं। आमीन। We heard about the drinking the pure milk as we come to the knowledge of truth. और जैसे कि हमने वचन में सुना कि जब हम सत्य के ज्ञान के पास आते हैं तो हमने जैसे सुना कि हम आत्मिक दूध पीते हैं। So it's very important. Milk has got a pure milk, not just any milk. Pure milk has got a very important part in our diet as we come to the Lord. और न केवल यहाँ पर दूध के विषय में कहा गया, परंतु यहाँ पर निर्मल शुद्ध दूध के विषय में कहा गया है, क्योंकि जैसे कि हम मसीह में आते हैं तो यह बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Like children drink milk at certain point in their growth stage. और जैसे कि हम छोटे बच्चों के जीवन में देखते हैं कि अपने जीवन और छोटे बच्चे जैसे अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं, एक समय तक उनके लिए दूध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। So we read in Hebrews 5:12 onwards that in fact, though by this time you ought to be teachers. It's talking about the people to whom Paul, or the author, is writing this. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk and not solid food. और यही हम इब्रानियों के 5वें अध्याय में हम वचन में देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेरित वो वचन लिख रहा है वह उन लोगों से कह रहा है कि तुम अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहता, लेकिन अब तुम चाहते हो कि तुम्हें आधी शिक्षा फिर से सिखाई जाए और तुम्हें अन्न के बदले दूध चाहिए। So it says that you should have been moved from drinking milk to a teacher's stage, but you're still drinking milk. What is that milk? Which is the elementary truths of God's elementary doctrine all over again. That's what milk is. और यहाँ पर वचन कहता है कि तुम्हें समय के अनुसार अब तक तो अन्न खाना चाहिए, सयाने हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम दूध चाहते हो, मतलब कि तुम अब तक बालकों के समान बच्चे ही हो। So the 13th verse says, anyone who lives on milk, being an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. और उसका 13वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। So it's very important for us to drink milk, but we should graduate from drinking milk to a doctrine which will lead us into righteousness. तो हमारे लिए दूध पीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसके साथ साथ अगले चरण पर भी आप उन्नति करके बढ़ते जाएं कि जो अन्न है सयानों के लिए वो आप सयाने बन जाएं। So what is milk? Milk is elementary doctrine, the teaching of God's word. That is all these Bible studies, everything we do is elementary doctrine. That is just teaching. Here, listening to the teaching of God's word. और यहाँ पर जो हम दूध के विषय में बात कर रहे हैं, जो दूध है वह परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा है, और इसी के विषय में जैसे कि हम जो बाइबल का अध्ययन भी करते हैं, ये सारी आदि शिक्षा है। So what is solid food? 14th verse says that solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. लेकिन फिर जो अन्न है वह अन्न क्या है, और हम उसके 14वें वचन में पढ़ते हैं अन्न के विषय में कि अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। So the solid food is for the people who practice righteousness. They are on the way of righteousness. They are walking in the path. What they need every day is solid food, not milk. और यहाँ पर लिखा है कि जो सयाने हैं वो धार्मिकता के काम करते हैं और हर रोज के जीवन में वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और उन्हीं के लिए यह अन्न रखा गया है कि उनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते निपुण हो जाए। So we can look into our life. What is the kind of food we need? Are we still at the beginning stage, starting stage, where we take the doctrines? We are not doing anything at all. We are not practicing. We are not walking the way of righteousness, where we need solid food as we grow. We need solid and more solid food as we grow every day. तो आइए हम अपने आप के जीवन को देखें और खुद को जांचें और पता करें कि हमें किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, कि क्या हम अब भी दूध पीने वाले बच्चों के समान अब भी दूध ही चाहते हैं, कि हमें आदि शिक्षा वचन की फिर से चाहिए, कि हम केवल सिद्धांतों को ही लेकर इकट्ठा करें, या फिर हम उन सारी बातों पर धर्म के मार्ग पर चलते हुए जाए, आगे की ओर बढ़ते जाए, सयाने होते जाए, कि हमें और ज्यादा अन्न की आवश्यकता पड़े, कि हम और बढ़ते जाए, सयाने हो और अन्न की आवश्यकता पड़े। Hebrews 4:12 says very clearly, that how do you differentiate between these two? और इब्रानियों अध्याय 4 का वचन 12वां बहुत ही साफ रीति से वचन हमसे बात करता है, इसके बीच में अंतर पता करता है। For the word of God is alive and active, Hebrews 4:12, sharper than any
double-edged sword. It penetrates even to dividing of soul and spirit, joints and marrow. It judges thoughts and attitudes of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है. This is what the solid food does. It will discern between thoughts and intent. It will discern between what the soul says and what the spirit says. और यही वह अन्न जो है वो ठोस भोजन वह हमारे अंदर कार्य करता है कि वह अंतर पता करता है हमारे मन के विचारों में और भावनाओं में कि जैसे हमारी आत्मा क्या चाहती है, क्या विचार है और हमारा शरीर क्या लालसा करता है. For that you have to listen to the Holy Spirit directly, not from a preacher in the Bible teaching. Brother, can you repeat? For that we have to listen to Holy Spirit directly, not just a preacher in a Bible class. और हमें केवल किसी बाइबल अध्ययन के दौरान किसी प्रचारक को सुनने की आवश्यकता नहीं, हमें सीधे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है. Every moment as we progress, you keep on hearing two voices. One is the voice of the spirit, one is the voice of the soul. और जैसे जैसे आप आगे की उन्नति करके बढ़ते जाएंगे आपको दो आवाजें सुनाई देंगी, एक आवाज जो कि पवित्र आत्मा की होगी और दूसरी आवाज आपके मन की होगी. So you should be growing to a stage where you distinguish clearly between this is the voice of the spirit, this is the voice of the soul. You should say no to the voice of the soul and say yes to the voice of the spirit. और आप ऐसे चरण पर ऊंचाई की ओर आगे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है कि जहां पर आप स्वयं अंतर पता कर सके कि यह आवाज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से है या यह आवाज आपके मन आपके प्राण के अंदर से आ रही है. That is when we distinguish what God wants to speak to you and you take decisions based on that and then you walk in the path of righteousness. और जब आप इन दोनों बातों के विषय में कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या बात कर रही है और आपका मन आपसे क्या कह रहा है और जब आप इसमें अंतर पता करेंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तब आप धर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे. This solid food will give you a purpose for your life. You are moving to a destination. You are becoming more and more like Christ every day. और जब यह जो ठोस भोजन यह जो अन्न है यह आपके जीवन में आपके जीवन को मार्ग में लेकर चलेगा कि आपको किस मुकाम पर पहुंचना है. The people who are having milk, they are not having any purpose. They are just learning more new things every day. So like we read, they are more interested in more preachers who are ready to give what their itching ears wants to hear. और जो छोटे होते हैं जो दूध ही पीते रहते हैं उन्हें इन बातों में दिलचस्पी नहीं होती, वो केवल नई बातों को सीखने में ही रुचि रखते हैं और नई बातों को नए प्रचारकों से सुनने के लिए चाहते हैं. So 2 Timothy 4:3 says that 2 Timothy 4:3 for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them teachers to say what they like to hear. Their itching ears want to hear. और 2 तीमुथियुस अध्याय 4 के वचन 3 में हम पढ़ते हैं क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे. As Brother Matthew had said, they would like to listen to a lot of interesting messages. They like this message, that message. Their life is only listening to messages, studying, but they are not making progress. और जैसे कि हमने भाई मैथ्यू से भी सुना कि वे लोग केवल उपदेश पर उपदेश प्रचार पर प्रचार ही सुनते जाएंगे, यह प्रचार वो प्रचार इस विषय में प्रचार, लेकिन वो कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे. The solid food is only for those who set their mind to progress because that food is only for them. They don't other people don't need that. लेकिन जो ठोस भोजन है वो केवल सयानों के लिए क्योंकि उनका मन लगा हुआ है उस मार्ग में उन्नति करने के लिए बढ़ने के लिए, इसलिए उन्हें ठोस भोजन की आवश्यकता है. That is what you have to move from the elementary doctrine. When you read Hebrews 6, you will know that you have to move from elementary doctrine to more, doctrine of righteousness, living by faith. Discerning your mind between the good and evil. You're discerning your mind from the voice of the spirit and voice of the soul, and be led by the Spirit of God every moment of your life. इसलिए हमारे आवश्यकता है कि हम वचन के आदि शिक्षा से आगे की ओर बढ़कर उन्नति करते जाए जहाँ पर हमारे ठोस भोजन की हमें आवश्यकता पड़े कि हम विश्वास से परमेश्वर में चले और जिए और उसके धर्म के मार्ग में हम चलते जाए और भले बुरे के अंदर हम हमारे मन और आत्मा की आवाज के अंदर भेद कर पाए. That is 6:1 says, therefore let us move beyond the elementary teachings from Christ and be taken forward into maturity.
इसलिए इब्रानियों 6:1 कहता है कि आओ हम मसीह के आदि शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Brothers and sisters, we all look into our life and see which stage we are. Are we still moving around from doctrine to doctrine without a purpose, or we have a definite goal for our life? We are actually progressing every day, listening to the voice of the Spirit, which is the solid food. भाई और बहनों, हम अपने जीवन को जांचें और अपने आप को देखें कि हम किस स्तर पर अपने जीवन में हम खड़े हैं, कि क्या हमें अब भी वही दूध चाहिए, हम अब भी आदि शिक्षा ही को सुनना चाहते हैं, या हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज भाई मैथ्यू के द्वारा एक प्रोफेटिक वचन प्रभु ने हमको सुनाया। Pray to the Lord that God has made us hear a very prophetic word through Brother Matthew. ये वचन एक ऐसा खाना है जैसे कि एक मजबूत खाना जिसमें हड्डियों को और बल मिल सकता है। And it's like a food, a spiritual food, and it is like a food which will give strength to our bones. या बाइबल हमें कई झूठे शिक्षक के बारे में वार्न करती है, चेतावनी देती है। And Bible warns us regarding so many false preachers. इसलिए पौलुस जब इस पत्र लिख रहा था तिमोथियुस को, और उस समय बहुत सारा कलीसिया बढ़ गए थी, तब पौलुस ने तिमोथियुस को इस पत्र लिखा। And that's why when Paul was writing to Timothy, that was a time when churches were being divided, and that time Paul wrote a letter to Timothy. और पौलुस ने देखा कि कलीसियाओं में कोई एक डिसिप्लिन नहीं है, लीडर्स में या कोई लोगों के अंदर, या कई सारा समस्या कलीसिया के अंदर पौलुस ने देखा। तब उसने तिमोथियुस को इस 2 पत्र लिखा था। And Paul was observing that the discipline among the leaders and the churches was not there, and he observed all these things, and that was the time when he wrote the letter to Timothy. और पौलुस इसमें तिमोथियुस को 2 पत्र और तीतुस को 1 पत्र लिखा था उसने। And Paul wrote 2 letters to Timothy, and to Titus he wrote 1 letter. और पवित्र आत्मा से भरकर पौलुस इस बातें को लिखा उन पत्र में। And Paul was filled with Holy Spirit, and after that he wrote the letters. और जैसे कि वो पवित्र आत्मा से भरा है, उस समय में जो कलीसिया के लिए लागू होते हैं, सो आज भी हमारे जमाने में भी यही वचन हमारे लिए भी लागू होगा। And that time when he was filled with the Holy Spirit, the thing that was applicable to the thing that was applicable that time is still applicable today for our churches also. एक वचन है पहले कोरिंदी 9:24 में, एक पहलवान के बारे में वचन हमें प्रोत्साहन करती है। And there is a verse in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 which is concerning a very giant person. तो वहां पर लिखा है कि एक पहलवान अपना शरीर को बहुत सारी बातों से वो एक डिसिप्लिन में ला के रखते हैं। And here it is mentioned that a person who is a athletic and a giant, he controls his body and he disciplines himself and exercises self-control. हम देखा जाएंगे कि वो सवेरे उठते हैं और वो लोग बहुत सारा रनिंग्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने में बहुत सारा डिसिप्लिन करते हैं अपने शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए। And we see that they rise up early and they do so much of exercises, and they take proper control over their diet and to maintain their body in a disciplined manner. ताकि वो इस धरती में मिलने वाली छोटी छोटी तोहफा जिसको कोई वैल्यू नहीं है, and so that they can receive that small prizes on this earth which does not have so much value. बट पौलुस हमें प्रोत्साहन करता है कि हम उस दौड़ना चाहिए जो कभी हमेशा जो कीमती जो सम्मान मिलते हैं हमें। But Paul is encouraging us that we should aim at a prize which is eternal and which will never last.
या पहले तिमोथीस 4:7 में एक बार ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। पहले तिमोथीस 4:7वां वचन में बहुत प्रोत्साहन वचन है। I want to read from 1 Timothy chapter 4 verse 7. It is a very encouraging verse. सिस्टर कैन यू रीड? Yeah. But stay away from worthless stories that are typical of old women. Rather, discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily training is just slightly okay. 7 na brother? ठीक है. यस यस सिस्टर, यस सिस्टर कंटिन्यू। Okay. 8 also brother? यस यस, For bodily training is just slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things, since it तो holds promise for the present life and also for the life to come. ये वचन हमें बहुत प्रोत्साहन देता है कि हमें कई झूठी शिक्षाओं से दूर रहना है, ताकि हम सिर्फ प्रभु के वचन पर और प्रभु के उद्देश्य पर हमको चलना है। And this verse is very encouraging, and it challenges us that we should keep ourselves away from all the worthless stories, and rather we should fix our eyes on the true godliness. या संपूर्ण रीति से हम प्रभु पर डिपेंड होना है, पवित्र आत्मा में प्रभु की ओर चलाएगी। We should depend ourselves. We should depend on the Lord fully, and we should be guided by the Holy Spirit. प्रेज गॉड। Praise God. This week I was spending time with Ethan and Sean, since Sean is at home, so it's a good company for Ethan to play along. तो इस हफ्ते मैं ईथन और शॉन के साथ समय बिता रहा था, क्योंकि शॉन अभी हम ईथन के साथ यहाँ पर ही है, तो ये इन दोनों के लिए बहुत अच्छी संगति हो गई। And due to the current shoot up in the rise of cases, our building is come under lockdown. You can't go outside the building. और अभी जैसे कि केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जो हमारी बिल्डिंग है वह सील हो गई है, इसलिए हम लोग घर से बाहर भी नहीं जा सकते। So I was teaching them a particular song, which children's song I can teach them so that Ethan can and Sean can sing coming Sunday. तो मैं उन लोगों को सिखाने के नजरिए से कोई सॉन्ग गाना सोच रहा था, जो उनको मैं संडे के लिए सिखा सकता हूँ। And I stumbled upon the song "Dare to be a Daniel," that one. और मैं उस गाने के तक पहुंचा जहां पर वो जो गाना कहता है कि तुम दानियल के समान डेयरिंग करो। So I was myself, as I was singing, I thought of explaining them what stand did Daniel take in his life. I was trying to make them understand before they sing. तो जब मैं उनको सिखाना शुरू कर रहा था, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कैसे किस रीति से वह खड़ा रहा था। Ethan answered that he was put in the lion's den. He was not afraid of being in the lion's den. तो ईथन ने उत्तर दिया कि वह तो जो शेर है उनकी गुफा में उसको छोड़ दिया था, और वह उस वक्त भी डरा नहीं। No, that was not the right answer I was expecting. Why? What was the stand that he took before he was put into the lion's den? What was the stand that he took? और यह जो उत्तर था, यह मैं उनसे इस उत्तर की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको शेर की गुफा में डालने से पहले दानियल ने कैसे परमेश्वर के लिए वह खड़ा रहा, वह मैं चाहता था पूछने के लिए। Yeah, that was during the later stage of Daniel's life, when he was matured. Like, today we are reading about what mature Christians eat. The temptation of the test that Daniel stood when he was put in the lion's prison when he was around 70 or 80 years old, when he was matured. तो यह जो काम हुआ था दानियल के जीवन में, वह तब हुआ था जब वह बहुत समझदार हो गया था, और उसकी उम्र में भी आगे 70-80 वर्ष का था। और जो भी विषय हम आज सुन रहे थे, वह भी जो समझदार मसीही हैं उनके विषय में था। But if you see his earlier part of Daniel's life, when he was around 18 or 25, around that age, Daniel and his friends, we read in the earlier chapters of Daniel, he took a stand of not to defile himself by eating just a food, something of the king's table he decided not to eat. That was the starting point of his Christian life, his spiritual life basically. और मैं
जो दानियल का जीवन था, जिसमें शुरुआती जीवन में 17-18 साल का जब वह था, उस समय पर जब उसने परमेश्वर के लिए एक निर्णय लिया और उसने यह निर्णय लिया कि वह राजा के मेज का जो अच्छा भोजन है वह खाने से उसने मना कर दिया, वह उस आयु में उसने वह परमेश्वर के लिए एक निर्णय लिया। So when he was very young, he took that decision not to go against God's laws and commandments, and then afraid to being killed for not obeying a king of another country like Nebuchadnezzar. और जब वह इतनी छोटी सी आयु का था तब उसने यह निर्णय लिया कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ेगा, और यहाँ तक कि वह एक राजा जो नेबुकदनेस्सर राजा था उसके आज्ञाओं के विरुद्ध भी वह खड़ा रहा। As I was telling them this story, I myself was getting inspired by Daniel's life. और जब मैं उनको यह कहानी बता रहा था तो मैं खुद भी दानियल के जीवन से बहुत प्रोत्साहित हो रहा था। We need to also stand for the Lord, stand for His word, stand for our convictions in place of office, not to do certain things. Maybe that will give us a backbone for our growing in maturity as we will be listening today. और जैसे कि हम भी अपना जीवन जीते हैं, भले भी हमारे दफ्तर में है या फिर हमारे रहने की जगह पर हैं, तब हमें भी परमेश्वर के लिए ऐसा एक निर्णय लेकर खड़े रहना चाहिए इसी समान। Such important decisions will help us to gain strength in our spiritual life, where we'll take a stand for the right thing, not to be a compromiser, not to easily give in to sin. That will show whether we are growing to maturity. और ऐसा परमेश्वर के लिए खड़े रहने से और हम अपने जीवन में, मसीही जीवन में और सिद्ध हो जाएंगे, ताकि हम इतनी आसानी से दूसरों के बातों में नहीं आएंगे, पाप में न गिरे, पाप में नहीं गिरेंगे, कॉम्प्रोमाइज ना करें, और अपने जो हमारा विश्वास है उसमें हम अब समझौता नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी आज हमने परमेश्वर का वचन सुना। I want to thank the Lord for whatever we heard today from His word. और सचमुच जैसे ब्रदर मैथ्यू ने कहा कि संसार में बहुत सारे ऐसे अलग अलग शिक्षाएं हैं जो आज लोगों तक पहुंचती है। And it is a true thing, whatever brother Matthew has shared, that there are so many teachings which are reaching different people. मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जब मैं नया प्रभु में आया था, मैंने ये सारी चीज से मैं गुजर कर यहाँ तक आया हूँ। And I have experienced all these things in my own life when I had newly came to the Lord, and through all these experiences now I have reached this point. और जब मैं एक जगह से दूसरे जगह जाता था तब मैं सोचता था अरे ये सच है, फिर ये जगह से दूसरे जगह आता था तो सोचता था ये सच है वो गलत था, तो ऐसे में सोचता था यहाँ पे गलती था यहाँ सही है, ऐसे होकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। When I used to come from one place to the other, I used to think that this is the true thing, and likewise from that place to the other, I was thinking that this is the right place where I have come, and now I have reached this place after going through all these circumstances. लेकिन मैंने ये बात को जाना कि मैं जहाँ पे भी था गलती सारी मेरे लाइफ में ही थी, मेरे जीवन की, मैं अपने आप को, मेरे लाइफ ही प्रभु जैसा नहीं था और मैं दूसरे तरफ सोचता था। बिकॉज जब मेरे पास ट्रूथ आया वो टाइम पे मैंने उसको रिसीव किया, इसलिए प्रभु ने मुझे सच्चाई और भी बताया। And from wherever I have been, all those parts, the mistake was mine only, and but whatever I had heard, I received that, and that is the reason why God has shown me the truth. Correct, brother? और मैंने बहुत सारे सुसमाचार सुने, लेकिन जैसे ब्रदर ने कहा कि गॉडलीनेस जैसा हमारा लाइफ होना, ये बहुत कम लोग सच में बांटते हैं कि हमारा लाइफ ऐसा होना चाहिए। And I have heard so many good news, and likewise brother was sharing that our life should have a godliness,
and it is a reality that our life should be godly. Brother Kiran, voice is slightly on lower side. Can you speak closer to microphone? Okay, brother. Now you can hear me? Seems slightly Hello? better. Just go ahead. ओके सो जब मैंने जब अपने जीवन में देखा कि मेरे खुद के जीवन में कितनी कमी है, और तब प्रभु से यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आप मुझे अपने जैसा बनाए। जब मैं ऐसे प्रार्थना करने लगा तब परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने लगा। When I used to look at my own life and see that there are so many shortcomings in my life, and I used to pray to the Lord that, Lord, you help me and you make me like yourself, then I could see that Lord helped me and he made me like him. और जैसे ब्रदर्स ने शेयर किया कि मैं भी सब जगह जाता था और सब जगह सुनता था, ज्ञान इकट्ठा करता था, बट मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं था। And how brothers shared that likewise I also used to go to different places and gain knowledge, but there was no change in my own life. लेकिन जब मैंने ब्रदर जैक से ये वचन सुना था जो 1 थिस्सलुनी में अध्याय 2 में लिखा है कि अगर हमने सत्य से प्रेम नहीं किया और अगर हमने ट्रूथ के पीछे नहीं चलना चाहा तो परमेश्वर ही हमको भटका देगा। But when I heard this message from Brother Zach, as it is mentioned in 1 Thessalonians chapter 2, that if we did not love the truth regarding ourselves and did not want to walk in the ways of truth, then he himself will make us go astray. तो ये वचन ने जब मैंने सुना तो मैंने यही प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे ऐसे एक लाइफ नहीं चाहिए जिसमें आपका भय नहीं हो, और परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा हर दिन बनूं। ये बाकी सारे सुसमाचार से आप मुझे बचाना और परमेश्वर जो खरा है वही मेरे पास आने देना। And then I pray to the Lord that, Lord, I do not want a life in which there is your fear is not there. And Lord, you only save me from such life, and give me a life that will have your fear. Then God help me to walk in. हम में से कोई भी प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो कोई भी हम वचन में से गिर सकते, क्योंकि गलाती अध्याय 1:5 में ऐसे पौलुस कहता है गलातियों को, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम इतने जल्दी ये सुसमाचार जो अनुग्रह का है इससे गिर कर किसी और प्रकार के सुसमाचार में अपना मन लगा है। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम में से कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से गिरकर कोई दूसरे समाचार पे मन लगा सकता है अगर प्रभु का ग्रेस हमारे ऊपर नहीं है और अगर हम सत्य से प्रेम नहीं करते तो। So as Paul is telling the people in Galatians that in chapter 5 that if you do not love the true chapter 1 Galatians chapter 1 that if you do not love the can you repeat, brother? Chapter 1 verse 6. Yeah. So as Paul is telling in Galatians chapter 1 verse 6 that I am amazed that you are so quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is not just another account, but there are some others, some who are disturbing you. So if you do not love the truth, then you yourselves may be deceived. तो एक समय उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को जाना था, लेकिन बहुत जल्दी पौलुस भी आश्चर्य हो गया कि इतने जल्दी वो लोग परमेश्वर के वचन से ठोकर खाए और वो दूसरे वचन पर अपना ध्यान लगाने लग गए। So there was a time then when they had realized the truth of God, but Paul himself was amazed when he saw that how quickly they deserted the truth and they started to walk in their own ways. तो एक ही तरीका है जिससे हमको परमेश्वर बचाए रख सकता है। व्हेनेवर परमेश्वर हमको जब भी हमारे लाइफ का सत्य बताता है, हमारे जीवन का परिस्थिति बताता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको रिसीव करें और हम उसको कहे कि प्रभु हाँ सचमुच मेरा लाइफ ऐसा है, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे, इस जीवन से हमको वो अलग बदले, हमारा मन फिराए और सच में एक रिपेंटेंस वाला लाइफ हम जिए और ताकि प्रभु के जैसा और हम बन सके। तभी परमेश्वर जैसे हमने पढ़ सकते हैं 2 थेस्सलुनी में, तब हमारा उद्धार भी होगा। So there is a way that God can save us if we pray to the Lord that, Lord,
you help us and you help us to walk in your ways, that is in the light, and that is the way when we will receive the salvation. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये बात ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के साथ अच्छी तरह से चल रहे हैं इसीलिए हम बचे रहेंगे, क्योंकि 2 थेस्सलुनियन अध्याय 3:3 में ऐसा लिखा है कि प्रभु सच्चा है। ये ऐसा नहीं कि हम सच्चे हैं, हम कई बार ठोकर खाते, कई बार हमसे गलतियां होती, लेकिन वहां पर लिखा है कि प्रभु सच्चा है। फर्स्ट 2 थेस्सलुनियन 3:3, प्रभु सच्चा है, वो हमको सुरक्षित रखेगा। So brothers and sisters, it is not like that we are good, that and we are the true people, that's why we can be always on the right track. But the fact is that because God is true, that is the reason we can walk in the true way, as it is mentioned in 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful and he will strengthen and protect you from the evil one. हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु विश्वास योग्य और सत्य है और वो ही हमें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और वो दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। तो प्रभु ही हमारी आशा है ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रभु का ही अनुग्रह से हम हर दिन चल सकेंगे और हमें प्रभु पर ही भरोसा रखना है कि प्रभु, लेकिन हमको बहुत जरूरी है कि हम सत्य से प्रेम करें और प्रभु जो हमारे लाइफ में बताता है वो हमारे लाइफ को हम स्वीकारें और बदले, तब प्रभु हमें इस सारी बातों से सुरक्षित रखेगा। So brothers and sisters, Lord is faithful and he will strengthen and protect us, and it is very important that we love the truth, whatever God says to us, and when we do that, then God will protect us and he will protect us from the evil one.